The supply and demand pressures of the human trafficking market ensure that new and innovative routes are always found. And the trade is not always so shady. At times, legitimate enterprises and channels are exploited. The Dawn Investigation Cell has this exclusive interview with the starched shalwar kameez human trafficker, Sardar Iftikhar. पाक टोगो और पाक बर्कीना ये दो कंपनियां थी। वहाँ से हम ये करते थे कि सबीना एयरलाइन थी बेल्जियम की और एयर फ्रांस थी फ्रांस वालों की। जब उनसे वो हम कहते थे कि ये हमारे बंदे जो ना वो जा रहे हैं, मतलब मार्केटिंग के लिए जा रही हैं या कुछ वो कोई अरेंज करते थे, कुछ चीज़ें जो ना वो चेक करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमें अरेंज करके देते थे वीज़ा 5 दिन का 5 दिन का वीज़ा वो देते थे। लेकिन वो होता था मल्टीपल वीज़ा होता था। मतलब वो अगर फ़र्ज़ करें फ़्रांस का वीज़ा है तो वो बंदे फ्रांस से आगे भी 3-4 मुल्कों में जा सकते थे। तो वो जब एक दफ़ा जाते थे वापस आते थे फिर वो दे देते थे मतलब 3 महीने का वीज़ा। लेकिन उसमें वो जो ना प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसमें होता था कि वो मल्टीपल वहाँ से टिकट बनवाई कराची की, पाकिस्तान, और जाते हुए वो सिर्फ पहुँच जाते थे वहाँ साइलम के ले लेते थे जिस तरह भी था। ये 2003 तक जो ना वीज़ों का सिलसिला चलता रहा। तो उस वक्त तक मैंने तकरीबन 200-300 बंदे जो ना वो भेजे। जब काम बंद हो गया वीज़ों वाला तो हमने जो ना वहाँ से इन्विटेशन के ज़रिए उसी तरीके से बंदे मंगवाए। कराची से दुबई, दुबई से नरोबी, नरोबी से आबिदजान और आबिदजान से माली, और माली और बाज़ दफ़ा हम मंगवाते थे कि बर्कीना अपना आबिदजान तक, और आबिदजान से फिर वीज़ा लेके बर्कीना फ़ासो का, बर्कीना फ़ासो से माली पहुँचते थे। माली से आगे अलज़ैर और मराकश तक ये हम लीगल तरीके से जाते थे। वहाँ जो रिफ्यूजी कैंप हैं वो बंदे उनको वहाँ उनकी एग्रीमेंट होता था, उस कैंप पे कश्मीर बेस पे या अफ़गानिस्तान पे वो लेके जाते थे वहाँ से फिर ये कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वही बंदे, उन डॉक्यूमेंट्स का हमें पता नहीं है कि वो क्या करते थे, वो रिफ्यूजी कैंप में लेके जाते थे, स्पेन का जो कैंप है, और वहाँ 2-3 महीने गुजारने के बाद वो उनको वहाँ से रिलीज़ कर देते थे। We focusing on prosecution as far as our own department is concerned, going for the arrests of the human traffickers, their facilitators, their accomplices, and then having them convicted. That is one. Number two, we're making more strict, more difficult for people to travel abroad on fake documents or on stolen documents. The government of Pakistan is attempting to seriously reduce the incidence of human trafficking in the Golden Crescent. The recently opened FIA office in Gujranwala, near Gujarat, the actual epicenter of the problem, is an attempt to go for the jugular. And to be very honest with you, the reason we've been able to bring it down so significantly during the last 3 years, the reason is that we have gone in a big way for the human traffickers who are living in these 4 districts. Despite being negligible as a point of origin for migrants, Karachi's name shows up. Consistently, it features as the ultimate point of transit for migrants trying to leave the country illegally, regardless of whether a land or air route is used. Karachi is being used in 2 directions. It is being used as a launching pad to different parts of the world, and it is being used either through visa system or it is being used without visa travels. Second, Karachi is again being used for receiving the illegal immigrants here. Now, as far as the land routes are concerned, mostly the people travel from Karachi South district, like Lee Market, to parts of Balochistan, from where they are smuggled into launches and different parts of the adjoining countries. And as far as visas are concerned, so people use Karachi International Airport for officially visiting to different countries like Dubai and then overstaying there. Human trafficking is a system which exploits trust or employs coercion and force to turn would-be migrants into virtual slaves. Since most of the victims, at least in Pakistan, are from a rural background, and also due to dangers involved, the transactions of the trade are pegged to
to a network of trust. The Dawn Investigation Cell discovered that known agents deny involvement in the trade unless the victim is known to them personally or they are furnished with references. नहीं सर, इसका नहीं हम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। Very sorry. It is also known that in many cases, the victim and the agent are related. यहाँ पे मेरे मामू का बेटा था, वो पहले भी एजेंट था, लोगों को बाहर लेके जाता था। तो अब्बू ने किसी और एजेंट से कहा था कि मेरे बेटे को बाहर लेके जाएं, तो वो यूरोप जाना चाहता था। इसने कहा कि मैं इटली में लोगों को भिजवा रहा हूँ और भी लड़के जा रहे हैं, आप इसे मेरे थ्रू भिजवाएं। अब्बू ने कहा चलें ठीक है। यहाँ पे कुरान की कसमें उठा के गया कि मैं कोई आपको, अब्बू को ये था कि कहीं धोखा ना दे दे हमें। तो लेकिन हमें ये था कि हमारा रिश्तेदार है, हमसे तो वैसा नहीं करेगा। पैसे चलो ले रहे, पहले कहता मैं तुमसे एक रुपया भी नहीं लूँगा तुम लोगों से। बाद में उसने कहा कि थोड़े थोड़े करके पैसे मुझे दे दे। पैसे लेता गया, जिस दिन पूरा 7 लाख हो गया, यहाँ उसने यही बात भी कही थी कि मैं बाहर लेके जाऊँगा। बाद में वहाँ से भाई का फ़ोन आया कि इन्होंने 6 दिन और 6 रातें मास्को से, या कराची से पहले मास्को लेके गए थे और मास्को से यूक्रेन ये पैदल लेके गए थे। उसने कहा कि इन्होंने मुझे पैदल चलवा के लेके गए हैं। इसने फिर उसे गाली वगैरह दी कि तुमने अब्बू को क्यों बताया कि मैंने तुम्हें पैदल चलवाया। तो उसने फिर फ़ोन करके अब्बू को बताया कि इसने मुझे ये बातें की हैं। तो पता नहीं फिर वहाँ पे उनके दरमियान क्या हुआ, और उसने पता नहीं तशद्दुद करके उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था कि हम तो पहचान नहीं पा रहे थे कि वो हमारा भाई है कि कौन है। Murtaza Madani died due to injuries suffered by the beatings. Madani was murdered by traffickers, led by his own first cousin. His father is currently in jail under the charge of motorcycle theft, filed by the very same cousin that trafficked Madani from Pakistan. उसके जिस्म पे जा बजा निशानात थे, उसकी एक ये बाईं आँख भी नहीं थी, यहाँ पे भी निशान था, और नाक पे ऐसे, हर मुंह पे भी, सारे मुंह पे निशानात थे। तो उसका तो ख्वाब था कि मैं जाऊंगा, इटली जाऊंगा, मैं अपने बाप के ख्वाब पूरे करूंगा और अपने ख्वाब पूरे करूंगा। तो लेकिन इसने पूरे ही नहीं होने दिए, और बाद में फिर बॉडी आई, इसने हमें बताया भी नहीं कि उसकी डेथ हो चुकी है। ये यहीं पे था, एजेंट थे उसके वहाँ पे, फिर बात भी करवाता रहा है। वहाँ पे अतीक नामी एजेंट था इसका, इसके साथ लाहौर का एक और एजेंट था मियाँ इलियास। वो जब इसे पता चला कि इन्होंने केस करवाया नासर पे, वो बाहर दुबई चला गया। वहाँ पे भी हमने उसे ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वो हमें मिला नहीं। तो इन्होंने पहले हमने इन पे पर्चा करवा दिया कि ये एजेंट हैं, तो इन्होंने फिर हम पे पर्चा करवाना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने गखड़ चोरी तशद्दुद का पर्चा करवाया कि इन्होंने रोक के हमें मारा। तो फिर ये हमें पकड़ने आए इधर घर। अबू मेरे इस्लामाबाद गए हुए थे, उधर मेरे इधर चाचू का घर है, उधर मेरे चाचू के बेटे के घर, चाचू के बेटे को पकड़ के ले गए। दोबारा गलत पासपोर्ट भी नहीं जाएगा, अपना बनाएगा। जान पे खेल के जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि मुझे तो सबक हासिल हुआ है, जो इस रास्ते से जाते हैं वो बेवकूफ़ हैं, इस रास्ते नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तोबा है बाबा, कैसा जाएगा, नहीं बस है हम लोगों को नुकसान इधर आएगा, फंसेगा, तकलीफ है। तकलीफ़ पर जाते हैं हम, लेकिन उधर मौत भी नज़र आती है, लेकिन मजबूरी थी। ये 100 में से 95% मौत है, 5% ज़िंदगी है। हम सबको यहाँ पाकिस्तान में आधा खा लेना चाहिए, उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। मेरी यही इल्तिजा है लोगों से कि कोई भी अपने भाइयों को और अपने बेटों को बाहर ना भिजवाए। Email the Dawn Investigation Cell, dic@dawnnews.tv, or write to us, Dawn Investigation Cell, 11 Dockyard Road, West Wharf Industrial Area, Karachi, Pakistan.